پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا ایک بہت ہی اہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اردو صرف ایک مضمون نہیں بلکہ ہماری زبان، ہماری پہچان اور ہمارے جذبات کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ باصلاحیت ہے، ماشاءاللہ، بس تھوڑی سی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دل لگا کر پڑھیں گے تو یقین مانیں اردو آپ کے لیے سب سے آسان اور دلچسپ مضمون بن جائے گا۔ آج کی کلاس میں آپ صرف سنیں نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں اور آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آج کا سبق آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ میٹرک میں اردو بک، جسے ہم درخشاں حصہ دوم کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پہلا چیپٹر حمد خدائے عز و جل ہے۔ اس کا پہلا چیپٹر حمد خدائے عز و جل ہے، جس کا مصنف شبنم کمالی ہے۔ حمد خدائے عز و جل جو ہے ایک حمد ہے۔ کیا ہے عزیز بچوں؟ حمد خدائے عز و جل ایک حمد ہے جس کا لغوی معنی ہے خدا کی تعریف۔ خدا کی تعریف، یعنی حمد میں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یاد رہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ جی، اس کے بعد نعت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہم سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ خلاصہ یوں کہ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اور منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء کرام کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء کربلا کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی خلفاء راشدین کی تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، اولیاء کرام، خلفاء راشدین کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور آگے ہے قصیدہ۔ قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں کسی بادشاہ یا راجا یا کسی خاص شخص کی تعریف کی جائے، اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اور مناجات، تو یاد رہے دوستو، مناجات اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، یعنی وہ نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، ویسے نظم کو مناجات کہتے ہیں۔ جی، آگے دیکھیے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کے غم میں ان کی اظہار خیالات پیش کی جائے، یعنی ان کی خوبیوں کو بتایا جائے نظم کی شکل میں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ تو پہلے یاد رہے کہ ہمارا جو سبق نمبر 1 ہے، یعنی پہلا سبق جو ہے وہ حمد خدائے عز و جل ہے، جسے ہم تصنیف کہتے ہیں، جس کو ہندی میں لیکھ بولتے ہیں۔ ہندی میں
लेख बोलते हैं। जी, तसनीफ हमारा क्या है, यानी पहला सबक हमारा कौन सा है, तो हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल है। जी, हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल का मुसन्निफ कौन है, तो याद रहे कि मुसन्निफ शबनम कमाली है। कौन है दोस्तों? शबनम कमाली। अजीज बच्चों, अगर आप इस वीडियोस को सही से और तवज्जो के साथ देखेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सुनकर ही याद हो जाएगा। आप गौर से सुने और तवज्जो के साथ सुने, लगन के साथ सुने, दिल खोल कर और शौक के साथ इस वीडियोस को देखें। इंशाअल्लाह आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। याद रहे, हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल एक तसनीफ है, दरख्शा बुक का पहला सबक है, जिसका मुसन्निफ शबनम कमाली है, जिसका मुसन्निफ शबनम कमाली है। और शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो याद रहे असल नाम मुस्तफा रजा है। असल नाम मुस्तफा रजा है। जी हाँ, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। और तखल्लुस क्या है, तो तखल्लुस शबनम है। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस शबनम है। जी हाँ दोस्तों, हम इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि तखल्लुस कहते किसको हैं, तो आइए खुलासा करते हैं तखल्लुस किसे कहते हैं। तो याद रहे, तखल्लुस उस नज्म को कहते हैं जिस नज्म में शायर अपने शेर के आखिरी मक्ता में जो नाम इस्तेमाल करे उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। यानी शायर अपने शेर के आखिरी मक्ता में जो नाम इस्तेमाल करता है उसी नाम को तखल्लुस कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। तो याद रहे कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 में हुई। 1938 में हुई। जी हाँ दोस्तों, शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 में हुई। किस गांव में हुई, तो याद रहे कि गांव पोखरीरा है। जी, गांव पोखरीरा में शबनम कमाली की पैदाइश हुई। अब याद रहे कि अगर हमसे पूछ लें कि शबनम कमाली की पैदाइश किस जिला में हुई, तो याद रहे कि शबनम कमाली की पैदाइश जिला सीतामढ़ी में हुई। जी, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 22 जुलाई 1938 में हुई। किस गांव में हुई? पोखरीरा गांव में हुई। और किस जिला में हुई? तो सीतामढ़ी में हुई। जी हाँ दोस्तों, जो कि बिहार में पाया जाता है, सीतामढ़ी। जी, बात करते हैं वफात की, तो शबनम कमाली की वफात 19 अगस्त 2004 में हुई। जी, शबनम कमाली की वफात 19 अगस्त 2004 में हुई। हालांकि कुछ अकाबिर का कहना है कि शबनम कमाली का इंतकाल 2006 में हुई। 2006 में हुई। तो याद रहे कि आपको ऑप्शन देखना है। हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, यानी 2004 और 2006 दोनों आंसर में नहीं आएगा, लेकिन खुदा न खबर आ जाए तो फिर आपको 2006 यानी बी वाला में टिक लगा देना है, 2006 सही हो जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती है, इसलिए आप 2004 को याद रखें, क्योंकि ज्यादातर अकाबिर 2004 को मानते हैं। इसलिए याद रहे कि शबनम कमाली का वफात 19 अगस्त 2004 में हुई। आगे बढ़ते हैं शबनम कमाली की तसनीफ के तरफ। तो याद रहे कि शबनम कमाली का तसनीफ जो है यानी 5 है। मशहूर तसनीफ 5 हैं। नंबर 1 अनवार अकीदत है, नंबर 2 रियाज़ अकीदत, नंबर 3 ज़ियाए अकीदत, और नंबर 4 फिरदौस अकीदत, और आखिर में है नंबर 5 सहबा अकीदत। ये तमाम तसानीफ जो है शबनम कमाली की मशहूर तसानीफ है, इसलिए आप इन तमाम का नाम याद रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा शबनम कमाली की मशहूर तसानीफ में से 3 तसानीफ का नाम बताएं, आपको 5 में से 3 का नाम लिखना होगा। इसलिए आप याद रखें, नंबर 1 में अनवार अकीदत, नंबर 2 में रियाज़ अकीदत, नंबर 3 में ज़ियाए अकीदत, नंबर 4 में फिरदौस अकीदत, नंबर 5 में सहबा अकीदत। जरूरी नहीं कि आप तरतीब से तीनों का नाम बताएं, आप इन 5 में से कोई सा भी 3 नाम
बताना है। अगर आपसे 3 सवाल पूछे, 3 आंसर मांगे तो, यानी अगर आपसे पूछ ले शबनम कमाली की मशहूर तसानीफ में 3 तसानीफ का नाम बताए, तो आप इन 5 में से 3 तसानीफ का नाम बताएंगे, आपको नंबर मिलेगा इंशाअल्लाह। आगे याद रहे कि शबनम कमाली ने नातिया शायरी के साथ, हालांकि शबनम कमाली नातिया शायरी के भी कई मजमूए शाये कर चुके हैं, लिख चुके हैं, उसके अलावा जो है गजलों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये कर चुके हैं, जिसमें ये हम्द जो हम आज पढ़ा रहे हैं उस हम्द के बारे में बता रहे हैं कि शबनम कमाली का ये हम्द बाउनवान यानी नाम हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल जो है जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। तख्लीक से मुराद उन्हीं की लिखी हुई एक तसनीफ है, जिसे हम हम्द खुदा अज़्ज़ा वजल के नाम से जान रहे हैं, जो दरख्शां हिस्सा 2 का पहला सबक है, जिसका मुसन्निफ जनाब शबनम कमाली ही है। जी, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा यानी ज्यादातर वक्त जो है वाज़ो तबलीग में सर्फ किया, यानी गुजारा दीन के कामों में शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा है, यानी सर्फ किया है। शबनम कमाली के मुतालिक तमाम बातें बता दिया गया कि शेर में 2 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। याद रहे कि पहले मिसरे को मतला कहते हैं। पहले मिसरे को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, और दूसरे मिसरे को मतलाए सानी कहते हैं। दूसरे मिसरे को क्या कहते हैं? मतलाए सानी या हुस्ने मतला, यानी दोनों में से एक नाम। मतलाए सानी कहे तो सही, हुस्ने मतला कहे तो सही। आगे याद रहे कि आखिर मिसरे को क्या कहते हैं? तो आखिरी मिसरे को मक्ता कहते हैं। आखिरी मिसरे को क्या कहते हैं? आखिरी मिसरे को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। आखिरी मिसरे को मक्ता कहते हैं, यानी पहले मिसरे को मतला, दूसरे मिसरे को मतला सानी या हुस्ने मतला, और आखिरी मिसरे को मक्ता कहते हैं। और उसी मक्ता में शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम तखल्लुस के नाम से जानते हैं। हमने आपको बताया हम्द किसे कहते हैं, तो सबसे पहले याद रहे कि हम्द का लुग़वी माना जो है खुदा की तारीफ है, यानी हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ बयां की जाती है। उसके बाद हमने बताया आपको